हालेलुया। ओके, प्रभु को हम स्तुति स्तोत्र करके एक छोटे से प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचन का पाठ करें। सभी लोग आंख बंद करके। ಜೀವ ಸ್ವರೂಪರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕರ್ತನೆ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿರುವ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಳ್ಳೆ ರೋಜು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆಯ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇವರೇ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು, ಜಗದೋತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಯಾವಾಗ ದೇವರೇ ನೀನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವರೇ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ. ಹೌದು, ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವಳ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಯ್ಯ, ಅನೇಕ ಫಲ ಫಲಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮಾತು ದೇವರೇ, ಅದು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಕರ್ತನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇ ನಾವು ಬಲ ಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದುಬೈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರೇ ಇನ್ನು ದೇವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸೋನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ದೈವದ ಆಸನಿಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನ ಜ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಿನ್ನ ಪರಿಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸೋನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಜ. ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ, ಭೂಮಿಯಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ದಯ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ದೈವದ ದಾಸರು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ದೇವರಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸ್ರಿ, ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೀನು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತೇವಪ್ಪ ಸ್ವಾमी। हालेलुया। ओके, प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे मैं पास्टर जी को भी, रेवरेंड पास्टर जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के बच्चे सभी लोग को मैं वंदना करता हूँ। तो बहुत खुशी है कि परमेश्वर एक हफ्ता से लास्ट वीक से आज तक एक अच्छा दिन देखने के लिए, परमेश्वर का बात सुनने के लिए और नित्य जीव को और नजदीक होने के लिए हमको जीवित संख्या में गिनती कर रहे हैं। हालेलुया। जीवित का संख्या में मतलब जो मरा हुआ है उसका अंदर नहीं, हमारा गिनती, हमारा काउंटिंग जीवित का संख्या में काउंटिंग कर रहे हैं। हालेलुया। तो बहुत खुशी है ब्रदर, बहुत खुशी है। हम सब लोग खुशी से परमेश्वर का पास कुछ बात हम सीखने के लिए थोड़ा टाइम परिशुद्ध आत्मा का साथ में देंगे हम। तो अभी तक हम पढ़ा है गलतियंस चैप्टर 6 में 6 में ऑलरेडी आप लोग को ये वचन प्रभु परिशुद्धात्मा ऑलरेडी ज्ञान दिया है, वो समझने के लिए मैं विश्वास करता हूँ। इसके पहले भी हम लोग थोड़ा से ऊपर उसका ब्रदर 5वां अध्याय लास्ट वचन చూడండి బ్రదర్, 5వ అధ్యాయం 25 26 అది కూడా కంటిన్యూ ఉంటుంది అక్కడ పైకి. మనము ఆత్మను అనుసరించి జీవించే వారమైతుమా, ఆత్మను అనుసరించి క్రమంగా నడుచుకుందాము. ఒకరికొకరు వివాదమునకు రేపగయు ఒకరినందొకరు అసూయ పడకయు వృధాగా అతిశయ పడకయు ఉండును। हालेलुया। इधर 3 बात हमको गलतियंस में
प्रभु का बच्चा पौलुस ने लिख रहा है, अपना पौलुस पास्टर जी लिख रहा है, वो जेल में है, उधर से लिख रहा है गलतियन सभा को और आज हमको भी, क्राइस्ट का बच्चे लोग, क्रिस्तु का बच्चे लोग कुछ रूल्स पे रहने का, मतलब उनका आज्ञा में रहने का, तब हम लोग नित्य जीव ले सकते बोल के पौलुस ने लिख रहा है। उसमें बोलता है अहंकार से नहीं रहने का। अहंकार नित्य जीव का विरोध है। अहंकार प्रभु का, स्वर्ग का वो विरोध है। और हम एक दूसरे को खाली पीली में बात करने का या दुख करने का या उनको कुछ क्या कोप का बात करने का कारण नहीं होना चाहिए। मतलब कन्नड़ में ऐसा लिखा है क्षणकोर, मतलब एक कोई एक खाली पीली का बात करके वो उधर कोप उड़ाने का चांस नहीं देने का बोल के बोल रहा है। तीसरी बोल रहा है एक के ऊपर एक मत्सरा, मतलब आंसू है, हाँ ऐसा नहीं रहने का हमारा अंदर बोल के। ये 3 वचन भी इधर लिख रहा है। क्यों ये लिख रहा है? मतलब ऐसा हो सकता है आदमी, प्रभु का बच्चे लोग ऐसा कभी कभी दुरात्मा का अंदर हो सकता है बोल के इधर हमको रिमाइंड कर रहे हैं। पौलुस ने गलतियंस को भी, आज हमको भी, भूमि का प्रत्येक मनुष्य को लिख रहा है। तो आप ये तीनों बातों में, इसका पहले हम लोग को बहुत कुछ लिखा है, यही 5 अध्याय में भी हमको मालूम है। ये फर्स्ट अध्याय से देखिएगा तो बहुत वंडरफुल रहता है। इसका 6 अध्याय पौलुस ने लिख रहा है जेल में बैठ के। पहले उसको वो परिचय कर रहा है गलतियंस को। दूसरा अध्याय में क्या है, वो उधर एक सुवार्थ, रॉन्ग सुवार्थ होता है। पौलुस जो पहले परमेश्वर के यीशु क्रिस्त के बारे में सुवार्थ करके गया, उसके अंदर में दूसरा एक सुवार्थ आता बल्कि पौलुस ने बोल रहा था। तो उन लोग के लिए इधर लिख रहा है। उन लोग थोड़ा रास्ता छोड़ के जा रहा था, गलतियंस क्रिस्त का मार्ग छोड़ के चल रहा था, इसके लिए उन लोग को बोलते बोलते आया। तीसरा अध्याय में एक एग्जांपल लेगा याकूब का, पेत्र का। वो लोग भोजन पदार्थ में एक अन्य व्यक्ति के साथ में, मतलब सुन्नति जो नहीं है उसके साथ में बैठने का टाइम में, जब याकूब आएगा उस टाइम में वो लोग उधर से हट के फिर वापस आएगा, क्योंकि यहूदी का संस्कार ऐसा ही था उस टाइम में, रूल्स। एक अन्य जाति के साथ में बैठ के खाना नहीं खाने का, ऐसा धर्मोपदेश किधर था? शास्त्र में था, धर्मशास्त्र में था ये। तो ऐसा 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 गलतियन लोग को, ये धर्मशास्त्र का आदमी लोग हम लोग नहीं है, क्योंकि अभी हम परमेश्वर का बच्चा लोग है, बल्कि वो लोग को लिखते 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 आया। आने के बाद 3 अध्याय 4वां अध्याय बहुत वंडरफुल रहता है। उसमें बहुत कुछ प्रभु पौलुस के साथ में बात करता है, हम कैसे कैसे रहने का, धर्मशास्त्र का अधीन क्या है, धर्मशास्त्र का बाहर क्या है। तो इधर आने के बाद हमको इधर भी मालूम पड़ेगा 13 वचन చూడండి ब्रदर, ये 5 अध्याय। थोड़ा मैं आपको फाउंडेशन डाल रहा है इसके बारे में। సహోదరులారా, हाँ మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే ఒక మాట, ఆ స్వతంత్రమును శరీర క్రియలకు హేతువు చేసుకొనక ప్రేమ కలిగిన వారై ఒకరినొకరు దాసులై ఉండుడి. ధర్మశాస్త్రం అంతయు నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించుము అని ఒక్క మాటలో సంపూర్ణమై ఉన్నది. అయితే మీరు ఒకరినొకడు కలుచుకొని భక్షించిన ఎడల మీరు ఒకరి వలన ఒకరు బొత్తిగా నశించిపోదురేమో. धर्मशास्त्र में प्रेम रहो बोल के बोला है। धर्मशास्त्र में प्रेम, सभी लोग कैसा रहने का, एक ही प्यार में रहने का बोल के धर्मशास्त्र बोलता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? एक को एक झगड़ा कर ले रहे हैं, एक को एक द्वेष कर ले रहे हैं बोल के 16 अध्याय में 16 वचन చూడండి ब्रदर। अभी ये धर्मशास्त्र का स्टोरी बोल दिया, इधर धर्मशास्त्र का बात बोल दिया, इसके बाद अभी 16 वचन में చూడండి ब्रदर। నేను చెప్తుంది ఏమనగా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకునుడి. हाँ అప్పుడు మీరు శరీరశిక్షను నెరవేర్చువారు శరీరము ఆత్మకును, ఆత్మ శరీరముకును विरोधमुगा अपेक्षिंचुनु। हाँ, ये अभी बोल रहे हैं धर्मशास्त्र में प्रेम से रहो, बोल रहे ठीक है, लेकिन परिशुद्ध आत्मा क्या बोल रहे हैं मालूम है? आप लोग है ना, पहले मेरा परिशुद्ध आत्मा को ले लो, बाद में आप लोग उसको स्वार कर सकता है। किसको? प्रेम कर सकता है, एक दूसरे को प्रेम कर सकता है, आप नीति न्याय में जी सकता है, और क्या है, परिशुद्ध जीवन जी सकता है। कभी आप परिशुद्ध आत्मा को लेने के अंदर, धर्मशास्त्र बोलता है लेकिन आप परिपालन नहीं करता है, तुम झगड़ा कर लेता है। लेकिन जब आप आत्म का अंदर आएगा, आत्म का अधीन रहेगा, तो ये सब से आप दूर नहीं रहना, ये परिशुद्ध आत्मा उसको दूर करेगा। ऐसे ही इसको कंटिन्यू 16 17 में చూడండి కొంచెం కంటిన్యూ చేద్దండి। అది
ఇది ఒకటి దాని ఒకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి ఆ. కనుక మీరేమి నిర్దేశింతురో వాటిని చెయ్యకుందురు. మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వారు కారు. శరీర కార్యములు స్పష్టమైనవి ఆ. అవేవనగా జారత్వము, జారత్వ, పవిత్రత్వ, हाँ, కామత్వము, విగ్రహారాధన, అభిచారము, ద్వేషము, కలహము, మత్సరము, క్రోధములు, క్షయములు, భేదములు, విమిత్రములు, అసూయలు, మత్తత్రులు, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. हाँ, ये सब शरीर से आएगा, ये सब शरीर से आएगा. इससे क्या है, आप है ना नित्य जीव से दूर रहेगा. लेकिन जब तुम परिशुद्ध आत्मा को लेगा तो अभी उसका 22 చూడండి బ్రదర్, 22 చూడ లో. అయితే ఆత్మఫలములు ఏమనగా ఆత్మఫలం అయితే ఏమంటే ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానం, దీర్ఘశాంతి, దయాళత్వము, మంచితత్వము, విశ్వాసము, हाँ, సాత్వికము, सात्विकम. ఆశా నిగ్రహము. हालेलुया. तो ये सब कभी आएगा बोले तो हम आत्मा में जब परमेश्वर को आत्मा हम लेगा तो आज सच में हमारा अंदर में परिशुद्ध आत्मा है, परिशुद्ध आत्मा के अनुसार हम जी रहा है, तो ये आज हमको भी फर्क नहीं पता. तो इसका साथ में आके कंडीशन बोल रहे 25 में भी हम लोग पढ़ा है ना, 25-26 में बोलता है आप लोग ऐसे ही रहने का, इतना ऊपर है, ये सब फॉलो करना है. और परिशुद्ध आत्मा का जो अनुसार है वो कंपलसरी अहंकार नहीं होना चाहिए, वो अहंकार नहीं होना चाहिए. और एक को एक वो झगड़ा करने का, बात करने का नहीं है. और उसका तीसरा मत्सरा नहीं रहने का बोल के वचन में बोल रहा था. ये कब पॉसिबल है, ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇది మనం పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న అప్పుడు. तो निजंगा आज हम लोग परिशुद्ध आत्मा का साथ में जी रहा है कि नहीं है. आज क्रिस्तियनी लोग, कितनियों क्रिस्तियनी लोग आज इसके अंदर है कि नहीं है बोल के भी हम देखना पड़ता है, नहीं है. इसका पहले देखे तो हम लोग अभी किधर से आए बोल तो हम धर्मशास्त्र से भी परमेश्वर के अंदर आया. वही किधर हमको थर्ड अध्याय में చూడండి బ్రదర్, 3వ అధ్యాయం ఉంటుంది ఏమన్నా ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ 5వ అధ్యాయంలో 26 చూడండి బ్రదర్. ఒకరినొకరు వివాదము రేపకయు, ఒకరి యందు ఒకరు అసూయ పడకయు, వృధాగా అతిశయపడకయు ఉందుము. కాదు బ్రదర్, సారీ ఈ 3వ అధ్యాయం రండి, 3వ అధ్యాయం ఉంది. 3వ అధ్యాయం 23 నుంచి రండి కొంచెం. విశ్వాసం ఎల్లడు కాకముందే ఇక ముందుకు బయలుపరచబడబోవు విశ్వాసము లభింపవలసి వారుగా చెరలో ఉంచబడినట్టు మనం ధర్మశాస్త్రం లోనైన వారిని. ఓకే, కాబట్టి విశ్వాస మూలమున నీతిమంతులమున తీర్చబడినట్లు క్రీస్తు వద్దకు మనం నడిపించుటకు ధర్మశాస్త్రము మనకు బాల శిక్షకుడాయను. అయితే చూడండి ఫస్ట్ విశ్వాసం వెళ్ళడాయను కనుక ఇక బాల శిక్షకుని క్రింద ఉండము. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసం ఉన్న దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ఇంకొకటి చూడండి 27%. క్రీస్తులోనికి బాప్తిసం పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకుని ఉన్నారు. अभी हम लोग परिशुद्ध आत्मा को, यीशु क्रिस्त को हम धरिंच किया है, तो इसके लिए हमको ये आगे आके 6वें अध्याय में बोल रहे हैं आप लोग ऐसा रहना चाहिए. अभी हम लोग धर्मशास्त्र का दिन नहीं है. जब तक परमेश्वर नहीं आया था भूमि में, धर्मशास्त्र का आज्ञा था, धर्मशास्त्र का आज्ञा था. लेकिन अभी परमेश्वर का आज्ञा ऐसा है, परिशुद्धात्मा का फला प्रीति, प्रेम. और प्रीति प्रेम क्या है ब्रदर? संतोष, समाधान, निजंगा आज हमारा अंदर है. क्रिश्चियन के लोग में अंदर दिल में ऐसा है क्या? नहीं है. हम लोग कितना साल से का पहले हम लोग बैप्टिज्म लिया है, कितने दिन का पहले हम क्रिश्चियन के में आया है. क्या खाली क्रिश्चियन है, खाली क्रिस्त का आदमी है, उसका बच्चा नहीं है? ये हमारा फ्रांसिस्को ये हमारा दिल में भी फर्क नहीं ब्रदर्स. अगर ऐसा है तो చాలా సంతోషం, అది దేవుడి కూడా సంతోషమే. अगर ये प्रीति प्रेम संतोष दीर्घ शांति हमारे अंदर है तो संतोष है ब्रदर्स. लेकिन आज कितनी लोग इसका अंदर नहीं है.
तो प्रभु को ये इष्ट नहीं है। प्रभु को इष्ट नहीं मात्र नहीं है, ये नित्य जीव के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको गलतियन लेखन में पौलुस लिख रहा है, आप लोग दूसरा सुवार्थ का नहीं पकड़ना चाहिए, और क्या है, आप लोग दुनिया का अनुसार नहीं चलना चाहिए। अगर तुम शरीर में है तो अभी तक तुम ऐसा ही है, तुम कोई संबंध नहीं परिशुद्ध आत्मा को। अगर परिशुद्ध आत्मा को तुम संबंध होना चाहिए, तो परिशुद्ध आत्मा को आप संबंध है तो आपका पास ये फल दिखना चाहिए बोल के गलतियन लेखन में बोल के आ रहा है। आने के बाद अभी 6వ अध्याయం రండి బ్రదర్, 6వ అధ్యాయం 1 నుంచి కొంచెం మనం చదువుకుందాం, ఇప్పుడు చదువుకుందాం 10 దాకా 1 వచనం బ్రదర్. సహోదరులారా ఒకడు ఆ, ఏ తప్పిదములోనైనను చిక్కుకొని నెడలా ఉమ్, ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తనను తాను శోధింపబడదేమో అని ఉమ్, తన విషయమై ఉమ్. చూచుకొనుచు ఆ. సాత్వికమైన మనసుతో అట్టి వారిని మంచి దారికి తీసుకొని రావాలి. हाँ, एक लास्ट में पौलुस बोल रहा है, एक सभा में बोल रहा है, एक सहोदर को बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है, आप लोग एक आदमी कोई भी गलती में है तो हमको ऑलरेडी मालूम पड़ रहा है पढ़ने के टाइम में చదువుకున్నప్పుడే మీకు అందరికీ తెలిసిపోతే నాకు విశ్వాసం బ్రదర్స్। तो ये क्वालिटी के अंदर हम लोग एक कोई भी ब्रदर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका पीछे हम बात कर रहे हैं, क्या उनका साथ में हम लोग प्रेम से डील कर रहे हैं, ये बात भी आज हमको दिल में रखना है ब्रदर्स, ये अपने मन में हृदय में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होएगा तो फिर हम लोग भी उसके अंदर जाने का टाइम है बोल के हमको क्लियरिटी कर रहे वाक्य। 2వ వచనం చూడండి బ్రదర్। ఒకని భారముల हम्म, నొకడు భరించి ఇలాగు క్రీస్తు నియమములను పూర్తిగా నెరవేర్చుడి. एक आदमी का भार एक आदमी का, ये किसको बोल रहा है, सहोदर को बोल रहा है। हाँ, स्टार्टिंग का वचन हम लोग कुछ भूलने का नहीं है। एक सहोदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो एक का भार एक हम लेना है, एक का कष्ट, एक का मुसीबत हम लोग लेना है ब्रदर्स। वो कौन सा भी चीज में हो, आत्मिक में हो या दुनिया के दैहिक में भी हो, हम एक का भार एक लेना बोल के क्रिस्त सहोदर को एक नियम है ब्रदर्स। अगर ये नियम भी हम परिपालन नहीं करें तो स्वर्ग को विरोध है। हालेलुया। 3వ వచనం కూడా చూడండి బ్రదర్। ఎవడైనను వట్టివాడై ఉండి తాను ఎన్నికైన వాడనని ఎంచుకొనని ఎడల తన్ను తానే మోసపరుచుకొనను. हालेलुया। ये वचन आज बहुत केयरफुल से हम लोग अपने दिल में रखना है ब्रदर्स, क्योंकि मैं कैसा है आपको मालूम नहीं है, आप कैसे है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम दोनों का दिल का अंदर का परमेश्वर को मालूम है। तो वो प्रभु का साथ में हम न्याय से जीना है, और प्रभु जो हमको जो वारा दिया है वो वारा का अंदर हम तृप्ति रहने का है। ये छोड़ के ఇదన్నీ వదిలేసి నాకు అన్ని తెలుసు అలాగ జీవిస్తే మరి మనం మనమే మోసం చేస్తున్నాం। तो आज बहुत घर में ये प्रॉब्लम है, बहुत चर्च में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आत्म से जीने के लिए उसको दिल नहीं है। लेकिन आज हमको आपको परमेश्वर बात कर रहा है ब्रदर्स, हम लोग अपना स्थिति क्या है, परिशुद्ध आत्मा हमको क्या कैपेसिटी दिया, कौन सा वारा दिया, वो वारा हमको हमारा सामने रख के हम उसके लिए प्रभु के पास खुशी से रहने के बोल के वचन हमको क्लियरिटी कर रहा है। इसके लिए हमको रोमन से बात बोलेगा ब्रदर्स। रोमन 12 చూడండి బ్రదర్, మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తాం మనం। రోమన్ 12 3వ వచనం। తన్ను తాను हाँ, ఎంచుకొన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనక దేవుడు ఒక్కొక్కరికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము తాను हाँ, సబుద్ధి గల వాడైతే తగిన రీతిగా తన్ను ఎంచుకోవాలని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలోనున్న ప్రతి వారితోనూ చెప్పుచున్నాను. हालेलुया। तो हमारा जो योग्यता है, जो हमारा कैपेसिटी, हमारा हृदय की कैपेसिटी है वो परमेश्वर को तेलसु, परमेश्वर ने हमको दिया है। तो वो कैपेसिटी हम बाहर पास नहीं करने का, हमको परमेश्वर ने जो गाने के लिए दिया है, जो स्वार्थ के लिए दिया है, जो प्रेम के लिए दिया है, उसका अंदर हम लोग खुशी से रहने का बोल के हमको वचन क्लियर कर रहा है। हालेलुया। और हम वापस आएगा गलतियंस में आएगा। 4వ వచనం చూడండి బ్రదర్, ఇక్కడ 6వ అధ్యాయం 4వ వచనం। ప్రతి వాడును ప్రతి ఒక్కడు తాను చెయ్యు పనిని 4-5 కల్పించగలుగుతారా? తాను చెయ్యు పనిని Hmm. పరీక్షించి చూచుకొనవలెను. Hmm. అప్పుడు
ఇతరుని బట్టి కాక తనను బట్టి అతనికి అతిశయం కలుగును. ఉమ్. ప్రతి వాడును తన బరువు తానే భరించుకోవాలను కదా. हाँ, ಐದು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ brother? ಹಾ, इसमें क्या लिखा है? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿ, ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ये वचन में ऐसा लिखा है, प्रत्येक आदमी अपना हृदय को परिशोधन करने का बोल के ये वचन में हमको बात कर रहा है. उसका 6 वचन చూడండి బ్రదర్. వాక్యోపదేశం పొందువాడు ఉపదేశించిన వానికి మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగ్యం ఇవ్వవలెను. మోసపోకుడి, దేవుడు విక్రింపబడడు. हाँ, 6వ वचन చూడండి బ్రదర్. 6వ वचन ఏమంటే మంచి పదార్థం అంటే ఏంటి అంటే, अभी एक प्रसंग की एक परिशुद्ध पालक हमको एक पास्टर जी ने हमको उपदेश कर रहा है, तो जो हम लोग सुना है, जो हम लोग सुन के जी रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के बच्चे को, दासों को हम लोग हमारा अच्छा का चीज में देने का बोलते, उसमें क्या है, परमेश्वर दासों के साथ में हम टाइम निकलना है, उनका साथ में उनको जो कुछ भी वो हमको उपदेश किया है, वो उपदेश हम लोग हमारे जीवित में रख के उनका साथ में रहने का बोल के ये वचन भी क्लियरिटी करना है. यस, और एक 7వ वचन చూడండి బ్రదర్. మోసపోకుడి, हाँ దేవుడు విక్రింపబడడు. हाँ, మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయను. यस, ये सब बोलने के बाद, ये अन्नी बोलने के बाद बोल रहा है अभी तुम मोह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तिरस्कार सहित नहीं करेगा. अगर ये सब बोलने के बाद भी आप फिर भी इसका अंदर ही है, ఇంత చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు అంటే జాగ్రత్త, జాగ్రత్త మాటలు ఇస్తున్నాను ఇక్కడ మనకు. आप ऐसे ही रहेगा तो आप शरीर पे भाव में रहेगा तो शरीर का ये तुम बीज डालते जाएगा दुनिया में, तो बी होशियार, केयरफुल रहना आप बोल के एक जो परिशुद्ध आत्मा को स्वीकरण किया है वो आदमी के बारे में बात कर रहा था पौलुस ने. गलतियंस में वो लोग पौलुस बहुत सारा सुवर्त किया है, हम ये पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा. गलतियंस पूरा सुवर्त किया है, उसके बाद भी वो लोग राइट लेफ्ट हो जाएगा. तो होशियार बोल के आज उन लोग को बोल रहे हैं, आज हम लोग को बोल रहे ब्रदर्स. तो నిజంగా हम लोग किधर है बोल के प्रतिरोज हम चेकअप చేసుకొని జీవించాలి భూమిలో. क्योंकि जो शरीर का भाव है, जो शरीर का आशा है, वो परिशुद्ध आत्मा को विरोध है, वो परलोक का राज्य को विरोध है. इसके लिए वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं बोल रहा गॉड, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप मोसा हो जाएगा, आप एक दिन मेरे से दूर हो जाएगा, आप एक दिन नरक में जाएगा बोल के वचन हमको क्लियरिटी कर रहा है. 8వ वचन చాలా మంచిగా ఉంటుంది కదా, మనం కదా అర్థంలో పూర్తిగా ఉంటుంది. 8వ वचन చూడండి. ఎలాగనగా हाँ, తన శరీరేచ్ఛను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షయమును పంట కోయును. ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమును పంట కోయును. हालेलुया. आज पूरा बाइबल की वचन की बात है ये नित्य जीव के लिए. मैं हम लोग कभी भी ये बातों में रहने का ब्रदर्स, नित्य जीव के लिए जाना है तो तुम्हें ना प्रीति, प्रेम, संतोष, दीर्घ शांति, परिशुद्धता, समाधान, ये फल का साथ में आप दुनिया में यात्रा करना है. ये फल अगर आपका पास नहीं है, आप शरीर का भाव में आएगा. यही जो लिखा है पति में जारत्वा, झगड़ा, हट्टी किच, मतलब ये इसके अंदर रहेगा तो आप एक दिन नाशन लेगा बोल के हमको वचन क्लियरिटी कर रहा. तो आज ये बात में हम और भी ध्यान रखेंगे. आज हमको बात कर रहे हैं, आपको और मेरे को बात कर रहे हैं परमेश्वर. आज हम कौन सा बीज इस दुनिया में डाल रहा है, मतलब कौन सा जीवित हम लोग जीवन जी रहा है. ఏ జీవితం మనం జీవిస్తున్నాం ఈరోజు అన్న మాట మనకి ఈరోజు మళ్ళీ కూడా దేవుడు మనం జ్ఞాపకస్తున్నారు కదా. तो जो परिशुद्धात्मा को विरोध है वो हमको नहीं चाहिए. जो नाशन फल है वो नहीं चाहिए. नाशन बहुत बहुत डेंजर है. डेंजर मतलब बोल नहीं सकते, इतना डेंजर. नाशन मतलब इस दुनिया का मरना नहीं है, वो नरक की बात कर रहा है. तो ब्रदर्स, और खाली हम लोग नहीं है, हमारा परिवार को, अपना चर्च वालों को, अपना आजू बाजू वालों को भी ये ध्यान उनको देना है. ये सुवार्थ उनको करना है ब्रदर्स, क्योंकि वो लोग पूरा शरीर का भाव में है बोल के हमको मालूम पड़ रहा है. आज हमारा अगल बगल में क्या है, कौन है, वो लोग क्या निरक्ष है, कोई निरक्ष नहीं है. तो उनका जिम्मेदारी लेना है. हम जीना है, మనం జీవించాలి, మరి उसका भी एक भार लोड हम लेना बोल के वचन हमको
बोधन कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो नाशन खचित बोल के बोल रहे हैं। ये वचन कितने पास्टर लोग से आप सुना है, ये वचन कितनी बार आप लोग पढ़ा भी है, కానీ స్కందర్ మనం జీవిస్తున్నాం లేదన్న మాట మీరు నేను ఈ రోజు అర్థం చేసుకోండి బ్రదర్స్। अगर ऐसा नहीं है तो नाशन है। और एक इसका 10 वचन सुनिए ब्रदर, 10 वचन बहुत वंडरफुल भी है। కాబట్టి हाँ మనకు సమయం దొరికిన కొలది అందరి ఎడలను విశేషముగా విశ్వాస గృహమునకు చేరిన వారి ఎడలను మేలు చేయదు। हालेलुया। अभी हम लोग को टाइम थोड़ा सा है बोल के ये उस दिन की बात के, अभी हम लोग को तो अभी नहीं है। अभी हम लोग कैसे रहने का, एक ही घर का साथ में। कौन सा घर? जो विश्वास का घर है, जो परिशुद्ध आत्मा का अनुसार जी रहा है, जो परिशुद्ध आत्मा का अनुसार जीवन वाला करने वाला जीवित का फैमिली है, वो चर्च है, उनका साथ में हम रहने के लिए कोशिश करना है, जीना है बोल के इसका अंदर हम है बोल के वचन क्लैरिटी कर रहे हैं। लास्ट संडे में हम लोग पढ़ा है ब्रदर्स, हिब्रू 12 और 22 నుంచి लास्ट वीक में हम लोग वो वाक्य ध्यान किया है, तो उसको थोड़ा हमको और भी मिल जाएगा। 22 నుంచి ब्रदर। ఇప్పుడైతే हाँ సియోనును కొండకును జీవము గల దేవుని పట్టణమునకు అనగా పరలోకపు యెరూషలేమునకును వేవేల కొలది దేవదూతల యొద్దకును పరలోకమందు రాయబడి ఉన్న జ్యేష్ఠుల సంఘమునకును వారి మహోత్సవమునకు అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును సంపూర్ణ స్థితి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మల యొద్దకును కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసునొద్దకును హేబోలి కంటే మరీ శ్రేష్టముగా పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు। हालेलुया। तो अभी हमारा जीवन कहाँ से आया बोलो तो दुनिया से आके इधर खड़ा है। अभी इधर क्या है? स्वर्ग का दूत लोग है, इधर क्या है? परमेश्वर है, इधर नित्य जीव है। तो ये जगह में अभी हम लोग आए हैं ब्रदर्स। ये दुनिया का यात्रा खत्म हो गई अभी हम लोग को इधर। जब आप परिशुद्ध आत्मा का तुम्हारे जीवित में स्वीकार किया, जब तुम परिशुद्ध आत्मा का वचन सुना है, నాకు అలాగే పొద్దున అంటే లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఈ వచ్చిన దేవుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాను కదా। నేను అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చాను, నేను ఎక్కడి నుంచి నేను ఎక్కడికి వచ్చాను, మళ్ళీ దేవుడు నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తెచ్చారు అన్న మాట దీంట్లో నాకు చాలా మంచి దేవుడు అనిపిస్తాను। हम लोग किधर आए बोलो तो ये स्टेज में आया, ये घर में आया, ये स्वर्ग में आया बोल के हमको वचन। किधर? चियोन पर्वत का पास, वो स्वर्ग का चियोन का बात कर रहा है, इस दुनिया का नहीं है। स्वर्ग का चियोन का पास और जीव स्वरूप देवर पట్టణ परलोक का यरूशलेम है ना ब्रदर, परलोक के यरूशलेम का पास अभी हम लोग आया है। कौन आदमी बैप्टिज्म लिया है, कौन आदमी क्रिस्त को धरण किया है अपने जिंदगी में, वो आदमी अभी स्वर्ग का पास आया है। और इतना नहीं है, ಉತ್ಸವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ ಬಳಿಗೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು 23 ముందు చూడండి, 23 కదా ఆ వచనం ఎలా ఉంటుందో తెలుగులో 23 మంది రాయబడి ఉన్న జ్యేష్ఠుల సంగమునకును వారి మహోత్సవమునకును అందరి న్యాయాధిపతి అయిన దేవుని యొద్దకును సంపూर्ण సిద్ధి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మ యొద్దకును। हालेलुया। ये नीतिमंत आत्मा कौन है? ये नीतिमंत आत्मा को इधर आया बोलते हैं अभी गॉड हमको। ये कौन है? हमको ये वचन ध्यान करेगा तो मालूम पड़ेगा। ये वचन नीतिमंत बोल दो, जो अब्राहम है, अपना मूल पितृ लोग, ये लोग नीतिमंत लोग है। ये लोग किधर अभी परदेश में है, अभी इन लोग का पास हमारा स्टेज है। कौन आदमी का? नीतिमंत आदमी का, परिशुद्ध आत्मा का जो स्वीकरण किया है, वो आदमी ये जगह में आया बोल के प्रभु बोल रहे हैं। इब्रिया लेखन में कितना वंडरफुल। अभी हमारा जीवित इधर आने के बाद फिर वापस जाएगा तो नाशन है। मेरे को कन्नड़ में इतना बहुत बहुत आनंद देता है, मैं सोचता हूँ आप लोग को भी बहुत आनंद है उसके बारे में, क्योंकि हम साधारण जगह में आए नहीं, अभी हम साधारण मनुष्य नहीं, अभी हम बड़ा एक परमेश्वर के पास, स्वर्ग के पास आया है, चियोन पर्वत के पास आया है, स्वर्ग का एक यरूशलेम में आया बोल के वचन हमको कितना अच्छे से हमको रिमाइंड दे रहे ब्रदर्स। तो कितना खुशी करने का, कोट्यान कोटि वो वचन देखो, कोट्यान कोटि देवदूत लोग जो आराधना कर रहे हैं वो जगह में आया बोल के बोल रहे हैं। इतना मात्र नहीं है, चोचल मक्कल मतलब जो फर्स्ट बर्थ है
वो बच्चे लोग के पास, हाँ जो वो बच्चे लोग का नाम लिख लिए ना उधर आए, वो बच्चे लोग कौन है? वो ये अपना पितर लोग है। अभी उन लोग के जगह में हम लोग आए, उनके वचन क्लियरिटी कर रहे हैं। और ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಹೇಬೆಲ್ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರ ಮಾತ್ प्रेज द हालेलुया। तो मेरा ब्रदर्स अब आज अभी हम लोग देखा ना गलतियंस लास्ट वचन में 10 वचन सूचन का हम लोग किधर है? कौन सा ग्रह में आया? एक नीतिवंत विश्वास का आदमी का ग्रह में। और ये जगह में इब्रिया 12 में हमको जो पढ़ा है ये जगह में आया बोल के क्लियरिटी कर रहा है ब्रदर्स। तो निजंगा हमारा जीवित कितना एक संतोष का जीवित है, कितना एक आनंदित का जीवित परमेश्वर हमको दिया ब्रदर्स। तो ये मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ ब्रदर्स, ये जीवन हम कभी नाश नहीं कर लेने का। अगर ये जीवन नाश करेगा तो सच में इस दुनिया में हम लोग पैदा होकर फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन उधर रोना पड़ेगा, एक दिन नरक में हम लोग रोना पड़ेगा ब्रदर्स। उधर परमेश्वर भी हमको तिरस्कार करेगा बोल रहे हैं। परमेश्वर उस दिन हमको बोलेगा बोला तुम कौन है, मेरे को मालूम नहीं है। तो आज ब्रदर्स इतना वचन हमको प्रभु हमारे लिए, दुनिया का इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, उनका बच्चा लोग के लिए लिख के रखा है। तो ये वचन हमारा जिंदगी में पकड़ के रह के इसका अनुसार हम अगर जीवन करेगा तो नित्य जीवन में जाएगा। नित्य जीव में ही है, नित्य जीव में ही हम लोग रहेगा बोल के ये वचन में समर्थ करता हूँ। आमीन।